Okay. The only physiography which was left in Brazil was islands. So let us start with island part now. Okay, so everyone please concentrate over here. इसके पहले हम लोग ने we did highlands, we did plains, we did the escarpment, and we did coastal plains of Brazil. Now the last part is islands. Now if we talk about islands, there are two types of island. जैसा इंडिया में भी दो टाइप के island थे, वैसे ब्राजील में भी दो टाइप के island है. First one is coastal islands which are near the coastal area of Brazil, and one is marine island which is far away from Brazil but it is a part of Brazil. ठीक है, यहाँ पर देखो, this is the pictures examples of marine island and coastal island, and these islands are famous in Brazil. They are like there are 5 spectacular islands famous for tourism. Even the islands, trust me, the islands over here is there for sale. मतलब यहाँ पर islands खरीदते हैं. A lot of celebrities and sports personality have bought islands, their own personal island in Brazil. Okay, this island is a tourist attraction. You can see the picture which is below. Okay, there is a big, okay, a yacht connected to this island. So islands are some of the tourist attraction of Brazil. Now, if you talk about island, coastal islands are formed due to depositional work done by rivers and sea waves. जैसा इंडिया में coastal islands था, वैसे ही ब्राजील में भी कैसा है कि coastal islands are formed because of depositional work of rivers and sea waves. Next, we will talk about marine islands. Marine islands are the result of volcanic eruption. They are the top of submerged mountain. जैसा अपना अंडमान निकोबार में था ना islands, same वैसे यहाँ पे Brazilian islands है. ठीक है, the features are same. Next, if you talk about these islands are more than 300 kilometers away from mainland. मतलब ये जो marine islands है ना, उसका distance ब्राजील से 300 kilometers है. Okay, and the islands near the coast of South Atlantic Oceans are mainly formed of atolls and coral island. Atolls and coral island. आपने याद है coral island सुना था कौन? अच्छा मेरे को ये बताओ, you can answer me through chat. कौन से island में coral islands था इंडिया में? Was it Andaman Nicobar Island or was it Lakshadweep Island? Which island was mainly of coral island in India? It was obviously Lakshadweep Island. ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जैसा कोरल आइलैंड है, यहाँ पर भी कोरल आइलैंड मिलता है. कोरल मालूम है, मैंने बोला था पॉलिप्स करके ऑर्गेनिज्म है जिससे ये कोरल आइलैंड बनता है. तो कोरल एंड एटॉल्स भी मैंने बताया था. तो जैसा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में थोड़ा बहुत कोरल है, वैसे ब्राजील के आइलैंड्स में भी कोरल और एटॉल्स है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आइलैंड ग्रुप्स ऑफ ब्राजील. तो हमने पूरे 5 के 5 फिजिकल can you hear me now? Am I audible? Yes. Okay, we'll continue with the lecture. There was a small technical glitch. I'll again share my screen with you. Don't worry. Okay. So we were talking about island groups. Yeah. Now यहाँ पर हमने 5 physical division कर लिया ब्राजील का. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, but for now there is an important notice. हमने फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील भी किया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी किया. आपका जो टेस्ट पोर्शन है, यू हैव अ टेस्ट ऑन 27 जून ज्योग्राफी का. तो उसका पोर्शन क्या मालूम है? चैप्टर नंबर 2 पूरा आएगा, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील.
और दूसरा है आपको चैप्टर नंबर 3 का पूरा फिजियोग्राफी आएगा, मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। मींस योर टेस्ट पोर्शन इज डन। 27 को जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट पोर्शन आपका हो गया है, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। We'll just have a recap what we did in the last 2 lectures. मतलब हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी किया, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील भी किया, तो उसका कुछ एमसीक्यूज है। You need to answer this MCQs one by one, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, the dash is the northwest of the dash in the northwest of Peninsula India are the oldest fold mountain. इसका आंसर क्या आएगा? You can reply me through chat. What will be the answer? The answer will be Aravali. The answer will be Aravali. ठीक है, Aravali is the oldest fold mountain located to the northwest part of India. ठीक है, next we come to next question, that is delta of Ganga Brahmaputra system is also called as, the answer is Sundarbans. ठीक है, आप वहां पे आंसर दे सकते हैं, just check the answer is correct or not. The answer is Sundarbans. Next question is, the western part of North Indian plain occupied by desert is known as, इसका दो नाम है, एक आपको पता है, that is one is Marusthali and the next one is Thar desert. ठीक है, तो आंसर इज मरुस्थली एंड थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, द आंसर इज, सॉरी, डैश इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। यहां पर आंसर गलत है, द आंसर विल बी शिवालिक रेंज। ठीक है, ये आंसर गलत है, मिसटाइप हुआ है, द आंसर विल बी शिवालिक रेंज। नेक्स्ट वन इज, डैश इज द लार्जेस्ट कोस्टल आइलैंड located between the mouth of river Amazon and river Tocantins. कौन सा आइलैंड है? हमने अभी पढ़ा था फिजियोग्राफी में, the answer is Marjo Island. The answer is Marjo Island. अच्छा, Brazil is covered mainly by dash. The answer is highlands. The Brazil is mainly covered by which physiographical division? Highlands. The escarpment obstruct dash winds. कौन सा विंड्स को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है जिसकी वजह से रेनफॉल वहां पे होता है? द आंसर इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल इज लोकेटेड टू द डैश पार्ट ऑफ हाईलैंड्स। द आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। किधर है? नॉर्थ ईस्टर्न। Ninth question is, backwaters near the mouth of coastal rivers in Kerala are called as dash. Locally उसको एक नाम है। अभी अगर आपने ये टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा थॉरली तो ही आपको ये आंसर आएगा, बिकॉज ये पर्पल बॉक्स में है, वो चैप्टर में एक पर्पल बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया गया है। What are backwaters locally called in Kerala? They are called as कायल्स और कयाल्स। ये पूछा जाता है, ठीक है, तो वो पर्पल बॉक्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील इज, ये सबको पता है, हमने लास्ट टाइम भी किया है, द आंसर इज पिको दे नेब्लिना। अभी मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों पूछा है, इसका एक रीजन है। द रीजन इज, आपका जो ज्योग्राफी का पेपर होगा ये टेस्ट में और आने वाले बोर्ड एग्जाम में, इट विल बी मेनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम। तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक में कहां से भी पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू बी थॉरो विद द टेक्स्ट बुक, सो यू नीड टू रीड द चैप्टर्स थॉरली, बिकॉज आवर पेपर इज मेनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड, नॉट सब्जेक्टिव। ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आने वाले, तो आपको ये टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कहां से भी, सिर्फ टेस्ट बैक नहीं पूछने वाले। तो ये था रिकैप ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ड्रेनेज।
फिजियोग्राफी हम लोगों ने खत्म कर लिया, अभी ड्रेनेज। अभी ड्रेनेज क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, ड्रेनेज मतलब रिवर सिस्टम। ज्योग्राफी में ड्रेनेज का मतलब है रिवर। तो पहला हम लोग किसका रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं? इंडिया का, अपने कंट्री का। सोहम, you need to turn off your video or you will be out of the lecture. Yeah. Same goes with Tanmay. Tanmay, switch off your video. JB Nagar. Yeah. Now let us continue with drainage of India. अभी ड्रेनेज ऑफ इंडिया अगर हमने लिया, rivers in India is divided into two parts. One is called as Himalayan rivers and one is called as peninsular rivers. और एक बार मैं बताता हूं, एक है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयस नॉर्थ में आता है और पेनिनसुलर साउथ में आता है। दोनों अलग अलग है, दोनों के फीचर्स अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ठीक है, अपने पास बहुत सारे रिवर्स है एंड दिस रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू हिमालयन एज वेल एज पेनिनसुलर रिवर्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड हिमालयन रिवर्स क्या होता है और पेनिनसुलर रिवर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हिमालयन ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट हिमालयन ड्रेनेज, most of the Himalayan rivers originate from glaciers. याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में ग्लेशियर्स पढ़ा था। व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर का मतलब है जब स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल का लेयर फॉर्म होता है, ठीक है, वो स्नोफॉल का लेयर है ना थिक होते जाता है एंड इट टर्न्स इनटू ग्लेशियर। ठीक है, a thick layer of ice, a thick mass of ice is called as glacier. और जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है, it turns into water body which we call as rivers. So mainly the rivers of Himalaya originate from glaciers. Okay, next if we talk about Himalayan drainage, in summer glaciers melt and discharge of water increases. इसके लिए समर्स में ना ये रिवर्स में ज्यादा फ्लड्स आता है, समर्स और मॉनसून सीजन में आपको ज्यादा फ्लड्स दिखेगा बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, These rivers are perennial in nature. Perennial मतलब क्या? It flows throughout the year. पूरे साल बहता है। पूरे साल कैसे बहता है? समर सीजन में आइस मेल्ट होने की वजह से और रेनी सीजन में रेनफॉल की वजह से। मतलब it receives rainfall because of two types of precipitation. One is snowfall and one is rainfall. That's why it flows throughout the year. इस ये रिवर में पूरे साल पानी रहता है, ठीक है, नॉन स्टॉप। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे। ये कैसा है, इसके फीचर्स क्या है? इफ यू टॉक अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। याद है हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़ा था। वेस्टर्न घाट्स अपने तरफ है, मुंबई की तरफ, ठीक है, तो वहां से बहुत सारे रिवर्स चालू होते हैं। जो मेजर रिवर्स है पेनिनसुला के, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज दे आर सीजनल रिवर्स। सीजनल मतलब क्या है कि दे आर ओनली फंक्शनल ड्यूरिंग रेनी सीजन। दे आर डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग समर सीजन। मतलब इसमें जो पानी आता है वो बारिश की वजह से ही आता है, रेनफॉल की वजह से। अगर रेनफॉल नहीं रहेगा तो इधर पानी का लेवल कम हो जाता है इसमें, कई कई जगह पे आपको पानी दिखेगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज they get water from rainfall, that's why it is called as rain fed rivers. इसको और एक नाम से बोलते हैं rain fed rivers। ठीक है, they are seasonal in nature and they seldom face problem of floods. floods आएगा ही नहीं ना, अगर पानी का लेवल बढ़ेगा ही नहीं तो floods आने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर एकदम कम चांसेस है फ्लड्स होने का। बट इफ यू टॉक अबाउट हिमालयन रिवर्स, वहां पे ज्यादा फ्लड्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हिमालयंस आर पेरिनियल इन नेचर, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल इन नेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं हिमालयन सिस्टम पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हिमालयन रिवर सिस्टम, अब ये रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैप मार्किंग में भी आता है, तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इन मैप मार्किंग इज रिवर्स। रिवर्स मार्क करने को इजी नहीं है, ठीक है, बट अगर आपको रिवर का, आपको फ्लो, आपको रिवर का ओरिजिनेशन पता रहेगा, ओरिजिन पता रहेगा, तो यू कैन मार्क द रिवर प्रॉपर्ली। Now if you talk about Himalayan rivers, it is further divided into two parts. One is Indus river system, जिसको हम लोग सिंधु रिवर भी बोलते हैं,
and the next one is Ganga river system. Now if you talk about Indus river system, let us start with Indus river system, जिसको हम लोग सिंधु बोलते हैं, सिंधु रिवर. इसको पहले सप्त सिंधु बोलते थे. क्या बोलते थे? सप्त सिंधु. सप्त मतलब 7, बिकॉज इसके 7 ट्रिब्यूटरीज थे, बट अभी उसमें से 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान में चला गया. आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अभी हम इसको सप्त सिंधु नहीं बोलते हैं, अभी सिर्फ इसको सिंधु बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको इंडस बोलते हैं. अपने कंट्री का नाम भी इससे ही पड़ा हुआ है, इंडिया, इंडस. अब ये इंडस रिवर कहां से चालू होता है वो भी देख लेते हैं. इंडस रिवर्स, कैन यू सी द मैप? ठीक है, ऊपर वाला जो मैप आपको दिख रहा है, रिवर इंडस स्टार्ट्स फ्रॉम टिबेट. चाइना में टिबेटन प्लेटो से ये रिवर चालू होता है. ये रिवर एक लेक के पास से चालू होता है, उस लेक का नाम है मानसरोवर लेक. क्या नाम है? मानसरोवर. उस लेक से ये चालू होता है रिवर इंडस. इंडिया में एंटर होता है जम्मू कश्मीर से. कौन से? यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर. पहले ये स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरी हो गया. कौन से यूनियन टेरिटरी से? जम्मू कश्मीर. फिर जम्मू कश्मीर से फ्लो के कौन से कंट्री में जाता है? दिख रहा है आपको पाकिस्तान. पाकिस्तान में फ्लो होता है. फिर पाकिस्तान से कहां पे जाता है? अरेबियन सी. ये पूरा फ्लो है रिवर इंडस का. और एक बार बताता हूं, रिवर इंडस स्टार्ट्स फ्रॉम टिबेटन प्लेटो नियर मानसरोवर लेक, enters in India from union territory called Jammu Kashmir, then flows into country that is Pakistan, and then enters into Arabian Sea. समझा? ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अब जब रिवर मार्क करोगे ना मैप पे, तो आपको ये चीजें याद रहेंगे, तो रिवर मार्क करना इजी हो जाएगा. समझा? अब ये रिवर है ना, है बड़ा. द लेंथ ऑफ द रिवर इज बिगर देन गंगा, बट इसका कोर्स है ना इंडिया में कम है. अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत छोटा है, एक ही यूनियन टेरिटरी में फ्लो होता है, जम्मू कश्मीर. ठीक है, अभी मैं इसका ट्रिब्यूटरी बात करूं. ट्रिब्यूटरी मालूम है ना, द स्मॉल रिवर विच जॉइंस द बिग रिवर इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी. इफ यू टॉक अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, द ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, रावी, चेनाब एंड सतलज. ठीक है, सतलज इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस. याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में बोलता है. And they flow through the state of Jammu Kashmir almost parallel to each other. ठीक है, if you see the picture below, वहां पे देखो parallel to each other है. झेलम, चेनाब, सतलज, they are flowing parallel to each other. ठीक है. Next is the major tributary of river tributary of India, that is Indus, is Satluj, which originates near Mansarovar and flows westward. अभी सतलज भी है ना, चालू होता है मानसरोवर लेक से. इंडस भी चालू होता है मानसरोवर लेक से, सतलज भी चालू होता है मानसरोवर लेक से. बट सतलज जब फ्लो होता है ना, वो फ्लो होता है पंजाब से. इसके लिए पंजाब प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. पंजाब पूरा सतलज रिवर की वजह से बना हुआ है. सो सतलज रिवर स्टार्ट होता है टिबेट से, बट इंडिया में किधर से फ्लो होता है? पंजाब से. और ये ना इंडस का ट्रिब्यूटरी है, बट इंडस को इंडिया में नहीं मिलता है. वो इंडस को किधर मिलता है? वो पाकिस्तान में. सतलज रिवर मीट्स रिवर इंडस इन पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया. इफ यू सी द पिक्चर बिलो, वहां पे आपको दिखेगा, देखो इंडस और सतलज मिल रहे हैं पाकिस्तान में, बट सतलज इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस. Indus flows through Pakistan and then meets Arabian Sea, as I said. So this was about river Indus. Again, to एक फटाफट recap कर लेते हैं. If you talk about Indus River, starts from Mansarovar Lake, enters in Jammu Kashmir, then flows into Pakistan and then goes into Arabian Sea. The tributaries of river Indus is Jhelum, Ravi, Chenab, Satluj. ठीक है, the major tributary of river Indus is Satluj, which flows from Punjab, and Punjab plains are formed because of river Satluj. ठीक है, तो ये था रिवर इंडस के बारे में. अब आते हैं नेक्स्ट रिवर, दैट इज रिवर गंगा. नाउ गंगा इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. इंडस रिवर है ना, गंगा से बड़ा है, बट इंडस का जो फ्लो है इंडिया में वो बहुत कम है. जो कोर्स है, जो लेंथ है, वो बहुत कम है. बट गंगा रिवर पूरा इंडिया में ही चालू होता है और इंडिया में ही खत्म होता है, इफ यू सी. ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ गंगा रिवर इज इन इंडिया. अच्छा, गंगा रिवर कहां से चालू होता है? गंगा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री ग्लेशियर. कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, कॉल्ड गंगोत्री, एंड क्रॉसेस हिमालयस टू
become an east flowing river. Can you see the river Ganga is flowing towards eastward? उसका flow चालू होता है eastward. It starts from north and it flows into east. River Ganga चालू होता है गंगोत्री ग्लेशियर से. River Ganga is formed because of two rivers. दो रिवर जब मिलते हैं तो रिवर गंगा बनता है. वो दो रिवर का नाम है, one is river Alaknanda and one is river Bhagirathi. Again, one is river Alaknanda and one is river Bhagirathi. ये दोनों रिवर जब मिलते हैं ना तो रिवर गंगा बनता है. और ये जो दो रिवर है ना, अलकनंदा एंड भागीरथी, ये रिवर के जो कलर है, पानी का जो कलर है वो डिफरेंट है. यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश दिस टू रिवर्स. ठीक है. और जब ये मिलते हैं तो रिवर गंगा बनता है. ठीक है. एंड रिवर गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द होली रिवर ऑफ अ कंट्री. ठीक है. उसका एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, व्हाई गंगा रिवर इज कॉल्ड एज होली रिवर. ठीक है. अभी हम लोग गंगा रिवर का बात करेंगे ना, तो गंगा रिवर कौन से स्टेट्स में फ्लो होता है, उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, वो भी जानना जरूरी है. Now, if you talk about Ganga River, Yamuna River is one of the major tributary of River Ganga. Can you see Yamuna River in the map? It is flowing parallel to Ganga, but it meets River Ganga in Uttar Pradesh near Allahabad. Yamuna starts from Yamunotri Glacier, Ganga starts from Gangotri Glacier. दोनों किधर मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में. ठीक है. यमुना एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद में भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है. The another tributary crosses the greatest Himalayan and enters India. Now अगर आप देखेंगे ना रिवर गंगा, तो रिवर गंगा का देखो वहां पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज दिए हैं. One is सरदा, next one is घाघरा, next one is गंडक, next one is कोसी और गोमती. ये 5 ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है. गंगा का 5 ट्रिब्यूटरीज है, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती एंड सरदा. ये सब आपको दिख रहे, देखो वहां पे ऊपर रिवर गंगा के ऊपर ही दिख रहे कुछ छोटे छोटे. यमुना के भी ट्रिब्यूटरीज दिए है. देखो यमुना का ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सोन, बेतवा. ये सब यमुना के ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है. सो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं गंगा का भी ट्रिब्यूटरी. अभी गंगा रिवर है ना, कौन से स्टेट से फ्लो होता है वो भी देखेंगे. अच्छा, now if you talk about Ganga river system, ये जो दिया ना, when it flows through the Himalayas it is also called as Sangpo. ये हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर है ना, they both meet each other in बांग्लादेश. ब्रह्मपुत्र रिवर भी चालू होता है तिब्बत से, बट इंडिया में किधर से एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश से. इट एंटर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. एंड इट एग्जिट्स फ्रॉम मेघालयन प्लेटो. अगेन इट एंटर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश and it exits from Meghalayan plateau to enter Bangladesh. In Bangladesh it meets river Ganga. वहां पे वो रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी बन जाता है. कौन सा रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर. और ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सैंगपो बोलते हैं, जहां पे टी साइलेंट है. अगर क्वेश्चन आया which river is called as Sangpo, it is Brahmaputra river. Brahmaputra river becomes the tributary of Ganga in Bangladesh. गंगा रिवर फ्लो होता है कौन से स्टेट से, याद रखना. इट्स फ्लोज फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से वो निकल के जाता है बांग्लादेश में. बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को मिलता है और ब्रह्मपुत्र को मिलके देन इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल. ठीक है. तो ये स्टेट्स याद रखना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है. ये ना ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहे जा रहे हैं. देयर आफ्टर इट गेट्स द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र आफ्टर टर्निंग ईस्टवर्ड्स. ओके. तो अगर मैं रिवर गंगा का बात करूं, तो रिवर गंगा का अगर मैं बात करूं तो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं. रिवर गंगा कहां से चालू होता है? गंगोत्री ग्लेशियर. द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन इंडिया फ्रॉम इंडिया is Yamuna river, which starts from Yamunotri glacier. There is one more major river which meets river Ganga in Bangladesh. The name is Brahmaputra. Brahmaputra in Tibet is also called as Sangpo. ठीक है. In Arunachal Pradesh it is called as Dihang. Okay. And when it crosses, thereafter it gets a name of Brahmaputra when it flows in India.
If you talk about Ganga River, it flows from Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. This was about river Ganga and river Indus. यहाँ पे हिमालयन रिवर्स हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो दो मेजर रिवर सिस्टम जो है हिमालयस का, वन इज रिवर इंडस एंड वन इज रिवर गंगा, ओके। गंगा रिवर में हम लोग ने और एक छोटा रिवर पढ़ा, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड एज सैंगपो इन तिब्बत। सो यहाँ पर हिमालयन रिवर सिस्टम्स खत्म हो गया, ओके। Now if you have any doubts regarding river system, you can ask me now. अच्छा, कयाल कहाँ आया है? कयाल is located in Kerala. Backwaters of Kerala is called as Kayal. The two rivers which meets to form Ganga is Alaknanda and Bhagirathi. अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तो रिवर गंगा बनता है। It is called as Sangpo. T is silent. Brahmaputra is called as Sangpo in Tibet.